Thank you, everybody, for joining in. Thank you so much for joining in and for being a part of today's session. There is some technical glitch happening with Zoom because of which अभी हम उसे YouTube पे live stream नहीं कर पा रहे हैं, but we'll work on it after we are done with the session. So thank you so much for joining in. And चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस के साथ. Let's begin with today's practice. कल जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था was called It is Universal Law. कंप्लीट नहीं किया था, शुरू किया था. उसके अंदर जो अब सेकंड पार्ट है हम उसको पूरा करेंगे. बट कल की जो आपकी असाइनमेंट थी, कल की असाइनमेंट थी कि आपने सीक्रेट मूवी देखनी है और अपने मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड्स करने हैं. तो आप में से किस किस ने किया? How many of you wrote down gratitudes for your mummy, for your papa? Write down done. If you did the practice, write down done. If you did not do the practice, write down not done. Okay, very good. A lot of people did the practice. And किन किन ने नहीं किया, write down not done. Okay. All right. तो जिन जिन ने किया, very good. जिन जिन ने नहीं किया, please make sure that you do it. ठीक है. And then उसके बाद जो आपकी दूसरी practice है to watch the secret movie. If you saw it, very good. Otherwise, it's okay. जब तक introductory chapters चल रहे हैं, take out the time to watch it. ठीक है? तो it's fine. We will see if we can plan one day to watch it all together. नहीं तो आपके साथ जो मूवी का लिंक है, it has been shared on the WhatsApp group. So you can watch it and so that you understand, especially for people जिन्होंने एक बार भी नहीं देखी है, for them it is highly recommended that you watch that movie at least once. ठीक है? So now let us begin with today's practice. Let us begin with today's session. So let me open. So we are just going to reread the last paragraph so that आपके लिए एक बार recap हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था. हमने कल पढ़ा था जो last segment था, it is universal law, which is gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It is because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. So if you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of these experiences. But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. ये हमने कल आराम से पढ़ा था, इसलिए अभी मैं इसे सिर्फ रीड थ्रू कर रही हूँ ताकि रिकैप हो जाए हमने कल क्या कवर करा है. Now, you will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of the sayings are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says, every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving.
And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. यहां तक हमने कल पढ़ा था, जहां पे इन्होंने हमें एक्चुअली समझाया था कि क्यों जरूरी है जानबूझ के ग्रैटिट्यूड देना, क्यों जरूरी है ग्रैटिट्यूड देने से आपके जीवन में मैजिक्स क्यों आने लग जाएंगे, आप क्यों अबंडेंस रिसीव करने लग जाओगे। ये इन्होंने इस पैराग्राफ के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके में समझाया है कि बॉस लॉ ही ऐसा चल रहा है दैट वॉट एवर आई एम गिविंग विल कम बैक टू मी। सो इफ आई एम गिविंग माई ग्रेटिट्यूड तो घूम के ऐसे और सर्कमस्टांसेस मेरी लाइफ में आएंगे जहां पे मैं और ज्यादा ग्रेटिट्यूड आई विल बी एबल टू फील। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, अभी तक जो हमने रिकैप करा। ओके, सो somebody इज आस्किंग, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज अ लॉ दैट आपने एट्थ या नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, न्यूटन्स लॉ। सो if you want to get into how this works, the numerics of it, then you will have to open your NCERT book. But if you understand कि okay, this is something that is existing, तो उसी सेम चीज के अंदर अब आपने अपना एक फंडा फिट करा है विच इज ऑफ एवरीथिंग हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एवरीथिंग में फिर ग्रैटिट्यूड भी तो आएगा ना। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या हुआ, अच्छी चीजें, मनपसंद चीजें, मनचाही चीजें, तारीफे काबिल चीजें, है ना, जो आपको तारीफ आप जिनकी कर सकते हो, कृतज्ञता इजहार कर सकते हो, जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड गिविंग ग्रैटिट्यूड। एंड द मोर यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड, गिविंग का ऑपोजिट क्या होता है, रिसीविंग, है ना। तो व्हेन आई एम गिविंग ग्रैटिट्यूड, उसका ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट होता है ना, तो ऑपोजिट ऑफ गिविंग इज रिसीविंग। तो आई विल रिसीव मोर एंड मोर सर्कमस्टांसेस ऑफ जहां पे मुझे और ज्यादा कृतज्ञता फील हो, और ज्यादा अच्छा अच्छा गुड फीलिंग हो। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू कैन यूज एनी कलर्ड पेन। ऑलराइट, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस पैराग्राफ से, इस सेक्शन से। द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind. The power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. अगर आप सचमुच आप भगवान में मानते हो नहीं मानते हो, किसी गुरु में मानते हो नहीं मानते हो, इवन इफ आप किसी साइंस में मानते हो, इफ यू रियली लुक एट, सिर्फ देखो रट्टू तोते के तौर पे नहीं, बट रियली व्हाट आर दे ट्राइंग टू टीच मी वाले लेवल पे अगर आप देखोगे, तो वो मोटा मोटा बात एक ही कर रहे हैं, मोटा मोटा बात एक ही कर रहे हैं ना। उनके बोलने का तरीका अलग हो सकता है, शब्द अलग हो सकते हैं, डायलेक्ट अलग हो सकता है, समय अलग हो सकते हैं, बट दे आर टॉकिंग द सेम थिंग। एंड वी आर सो ग्रेटफुल बिकॉज देखो, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं एक चीज पढ़ लूं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। मैं दिन में 5 मिनट गुरुद्वारे चली जाऊं बहुत बड़ी बात है। सिमिलरली आप मंदिर मस्जिद जिस भी चीज में मानते हैं, अब ये मैं बोलूं कि मैं पूरी गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ूं, उसको इंटरप्रेट कर पाऊं, एंड देन बिकॉज उसके वर्ड्स आर अ लिटिल, you require a lot of practice, a lot of deep learning in order to really understand that. And then उसके बाद अब आप बताओ, आप में से किस किस ने श्री भगवत गीता जी पढ़ने की कोशिश की है, बट उसके शब्द ही इतने मुश्किल होते हैं कि हाँ मैं रट सकती हूँ पर समझ में नहीं आता है। मैं बोलने के लिए बोल सकती हूँ कि हाँ कृष्ण जी ने ये बोला, उन्होंने ये बोला, बट जब रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो इट रिक्वायर्स इमेंस प्रैक्टिस। Yes. And now we are so grateful that somebody, and किसी एक ग्रंथ पे कर ले तो वो ही बहुत बड़ी बात है। Yes, and we are so grateful that in this journey we are actually going to get to the gist मतलब कि वो
इवेंचुअली कहना क्या चाह रहे हैं, एंड देन इन अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकेबल मैनर अपने जीवन में मैं उसको उतार कैसे सकती हूँ. So Muhammad ji said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha ji said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. जब आप खुश हो जाओगे for whatever things are, the way they are not, पूरी दुनिया आपके will belong to you. है ना, मतलब आप अभी क्या होता है, नहीं नहीं मैं और मेरी छोटी दुनिया. But then he is saying that if you allow yourself to be joyful in whatever way things are, आपके लिए एक नई दुनिया open up होगी. Krishan ji said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. आप किसी भी उसको ले लो, ये इतने सारे एग्जाम्पल्स ये दिए हैं ताकि आपको समझ में आए. ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है. यहाँ पे हम ये नहीं कि सिर्फ इसी के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं. इट इज समथिंग दैट ऑल द पीपल हैव बीन ट्राइंग टू से अलग अलग समय पे अलग अलग ढंगों से. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Tecumseh, Shawnee Native American leader. चलो बताओ, आप सब लोगों ने आज खाने में क्या क्या खाया, नाश्ते में क्या क्या खाया, बताओ. है ना, अभी जैसे ये लाइन पढ़ रहे हैं. चलो आप बताओ, आप में से कौन कौन जब सुबह उठा तो जहां भी आप उठे वहां पे मॉर्निंग लाइट थी, मतलब सुबह सूरज देवता आए हुए थे, आपके यहाँ पे रोशनी थी, बताओ. How many of you had Roshni in whatever city, whatever country you woke up in, you had Roshni? तो बताओ आप में से किस किसने उस रोशनी के लिए थैंक यू बोला. There was sun outside and you said अरे वाह, thank you. You said thank you. बताओ yes या no. For your life and strength. चलो बताओ, आप में से कौन कौन आज जिंदा है, आप में से कौन कौन आज जिंदा है, बताओ. एंड आप में से किस किस ने आज जिंदा होने की खुशी में बोला वाओ आई एम अलाइव, थैंक यू, आई एम अलाइव टुडे. टेल मी. यू हैव द स्ट्रेंथ. हो सकता है आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पाए, टॉयलेट जा पाए, खाना खा पाए, मे बी किचन में आपने कुछ काम किया, कुछ नाश्ता बनाया खाया, कुछ सफाई की, कुछ भी काम किया. यू हैड द स्ट्रेंथ टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नहाए धोए, यू कुड डू समथिंग. एंड हाउ मेनी ऑफ यू गिव थैंक्स फॉर इट, बताओ. नो, एंड आई एम आस्किंग स्टेप बाय स्टेप. मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, अपना अपना वो मत बोलो. एक एक चीज का मुझे बताओ, एग्जैक्ट टॉपिक जो मैं दे रही हूं उसका बताओ, डन या नॉट डन. कि आपने बोला कि हाँ भगवान, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू. एग्जैक्टली लाइक दिस. ये नहीं कि हाँ सुबह मैंने किसी और टॉपिक पे थैंक यू दिया. दैट्स नॉट व्हाट आई एम आस्किंग. आई एम आस्किंग स्पेसिफिकली फॉर दिस टॉपिक. है ना, गिव थैंक्स फॉर योर फूड एंड द जॉय ऑफ लिविंग. हाँ, कि आपने आज कुछ भी सुबह उठ के किसी भी प्रकार का कोई जॉय महसूस किया, किसी प्रकार की खुशी महसूस की, कोई मूवी देखी, कोई वीडियो देखी, किसी देख को हंसे, एंड आपने उसको देख के बोला अरे वाह यार, थैंक यू इस फनी वीडियो का, इसको देख के तो मेरा मूड बढ़िया हो गया. डिड यू डू इट? एनीथिंग दैट गेव यू जॉय. आपने मे बी अपने लव्ड वंस को हक किया, अपनी कोई लव्ड वंस की फोटो देखी एंड यू सेड अरे वाह आई एम सो ग्रेटफुल, मजा आ गया. So if you did it, great. If you gave your thank you, great. If you did not do,
इट्स ओके, है ना? एंड दैट्स, एंड देखो नॉर्मल लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं करता है, बट अब हम लोग जो प्रैक्टिस में आ रहे हैं मैजिक वाली, उसमें वो अब आपको बता रहे हैं कि किन किन छोटी छोटी चीजों में भी आप ढूंढ सकते हैं थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Whether it was Gandhiji, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, न्यूटन, आइंस्टाइन एंड मेनी मेनी मोर. देखो ना, इसमें इतनी सारी फील्ड के लोग हैं. इसमें जो रेवोल्यूशन में काम किए वो भी हैं, जो पीस मतलब शांति की ओर उन्होंने काम किया उनके नाम भी हैं. यहाँ पे जो लोग राइटर्स हैं वो भी है, पेंटर्स हैं उनके नाम भी है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम भी हैं. मतलब अलग अलग फील्ड के लोगों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. एंड दे ऑल हैड वन थिंग इन कॉमन, है ना? तो फर्क नहीं पड़ता कि आप हाउसवाइफ है कि बिजनेस ओनर है या कोई लॉयर है या आप स्टूडेंट है, फर्क नहीं पड़ता. अगर आप अपनी दी हुई गिवन फील्ड में भी इसी प्रकार के, कहते हैं ना कि आपके गुजरने के भी कई सालों बाद लोग आपको आपके काम के लिए जाने, यू हैव बिकम अ बेंचमार्क इन योर इंडस्ट्री, वट एवर योर इंडस्ट्री इज. So Albert Einstein ji ki scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. कमाल की बात है कि वो जानबूझ के ढूंढते थे. चलो आप बताओ, आपने आज के दिन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके लिए काम किया, जिनके लिए आप थैंक यू बोल सकते थे? बोला नहीं बोला बात की बात है, but they did something for which you could have said thank you to them. लाइक मेरे लिए जो घर पे अभी दीदी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया तो उनके लिए मैं थैंक यू बोल सकती थी, है ना? मतलब मैंने बोला पर मैं और बोल सकती थी. हमारे घर पे अभी असद भैया आए थे, उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा काम किया, मैं उनका थैंक यू कर सकती थी, है ना? और देखो और किस चीज के लिए मैं थैंक यू बोल सकती हूँ. कंचन दीदी ने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, तो शी केम एंड शी वॉज हैप्पी टू सी मी, तो मैं उनको और ज्यादा अच्छे से ग्रेटिट्यूड के साथ विश कर सकती थी. और बताओ, आपके मिल्कमैन थे, आप अपने पापा से मिले, सुबह अपने हस्बैंड से मिले, यस. हाँ, सड़क पे स्वीपर से मिले, यस. एंड देखो ये चीज जो है, जो अभी हम एक दूसरे से बात करके हम रिमाइंड हो रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट आइंस्टाइन डिड एवरी डे. कि मैं दिन में 100 बार अपने आप को याद दिलाता हूँ उन लोगों का थैंक यू करना जिन्होंने वो काम किया जो भी उन्होंने काम किया. दूसरे लोगों का थैंक यू करता हूँ. तो आपको क्या लगता है, यूनिवर्स ने एवं ही उनको अपनी मिस्ट्रीज ऐसे प्रकट कर दी कि वो आए और उनके अंदर ही कुड मेक सो मेनी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. इट डजंट हैपन बाय चांस ना, क्योंकि उन्होंने गिव किया इतना सारा थैंक यू जानबूझ के. दैट इज व्हाई ही रिसीव्ड मेनी मोर सच सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जहां पे वो और ज्यादा अपनी कृतज्ञता इजहार कर पाए. इज इट एनी वंडर that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. देखो कोई कमाल की बात नहीं होती है कि कोई इंसान जीरो से इतना महान बन गया because they had a certain attitude.
आप मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, बट आप में से किसी ने, एक मूवी आई है निकोला टेस्ला के ऊपर, निकोला टेस्ला का नाम सुना है? जैसे ये भी साइंटिस्ट है, सिमिलरली ही इज ऑल्सो अ साइंटिस्ट एंड ही इज much more brilliant. He is amazing. He is like, he was way ahead of his time. He was really amazing in his discoveries. Have you heard his name? Maybe write down no if you have not heard. Yes. So some people are writing yes, some people are writing no. अगर आप एक्चुअल में उनकी मूवी देखोगे ना, देर आर फ्यू मूवीज दैट आई सॉ अबाउट हिम स्पेशली इन द लॉकडाउन टाइम, एंड उनकी ना, मतलब हिज ब्रेन वाज अमेजिंग, हिज साइंस वाज अमेजिंग, हिज रिलेशनशिप विद मैथ्स वाज अमेजिंग, बट थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने गरीबी से बहुत स्ट्रगल किया। मतलब इतने कमाल के साइंटिस्ट होने के बावजूद ही डेल्ट विद अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, ही डेल्ट विद, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग चाहिए होती थी, बट जो फाइनेंसर्स होते थे वो एंड में जाते जाते मना कर देते थे, तो ही हैड टू स्टॉप हिज इन्वेंशंस मिड वे, एंड थिंग्स लाइक दैट हैपेंड अ लॉट विद हिम। एंड देन आई अंडरस्टूड ये क्यों हो रहा है इनके साथ, बिकॉज मैंने तो मैजिक बुक करी हुई थी, वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक कह रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने बहुत कमाल की डिस्कवरीज करी, बट उनका जीवन ऐसा क्यों निकला? बहुत कमाल का था, बट एंड में आते आते, एटलीस्ट इन माय नजरिया, इट वाज अ बिट स्केर्स। एंड देन आई वाज थिंकिंग, अच्छा इनकी लाइफ में ना ग्रैटिट्यूड मिसिंग है। दैट इज व्हाई ही वाज ब्रिलियंट एट हिज वर्क, बट हाफ ऑफ यू डोंट इवन नो हिज नेम। He used to complain a lot about, अरे यार ये तो पैसे ही नहीं देते. He used to complain about his relationship with his parents, from what I remembered. He had a lot of complaints. He was brilliant, just brilliant. But जो आप आज सीक्रेट इंग्रेडिएंट सीख रहे हो, बस उतना मिसिंग था, बाकी सब तो बहुत कमाल था. So there is a reason why some names become Amar and some names are so brilliant, yet they deserve more. द साइंटिस्ट्स, एंड ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आप मेरी बात से अग्री नहीं करते हो तो आप प्लीज इस बात को इग्नोर कर सकते हो. हम यहाँ पे, हमारा पॉइंट ऑफ फोकस इज जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक बुक. हम अपना फोकस सिर्फ उन्हीं शब्दों पे बनाएंगे जो अभी हम इस बुक में पढ़ रहे हैं. मेरे दिए गए एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन है. इफ इट रेजोनेट्स, वेल एंड गुड. इफ इट डजंट, 100% इग्नोर कर दो एंड जस्ट कम, ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू जो मैजिक बुक हमें सिखा रही है. ठीक है? ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये बुक और उसकी असाइनमेंट. So the scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. है ना? आपको पता है, आपने सुना होगा अपनी दादी से, नानी से, मम्मी से, पापा से कि बेटा शुभ शुभ बोला करो, बेटा अच्छा अच्छा सोचा करो, बेटा इसमें भी कुछ अच्छा छुपा होगा, बेटा कोई बात नहीं, इसमें भी अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स. किस किस ने ये बातें सुनी हुई है अपने बड़े लोगों से? बहुत बहुत बार सुनी हुई है, बहुत बार सुनी हुई है. येट जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो. सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, आसान लगता है, बट कहते हैं ना, जब तक यू डोंट ब्रिंग इट इनटू योर लाइफ, इट विल नॉट वर्क. माई डिस्कवरी. अब हम रोंडा बर्न की कहानी पढ़ते हैं. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes. For sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. जैसे मैं आप लोगों से अभी पूछूंगी कि अरे आप में से कौन कौन ग्रेटफुल लोग हैं, आप सब बोलोगे हाँ मैं हूं, मैं हूं. आप मुझसे भी बोलोगे तो मैं बोलूंगी हाँ मैं हूं, मैं हूं. बट देर कंसिडर कीजिए कि देर इज अ नेक्स्ट लेवल दैट इज वेटिंग फॉर यू. रोंडा की कहानी पढ़ते हैं.
The truth is, I was not a grateful person at all. I did not know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly did not make me a grateful person. है ना कि कभी कभार किसी ने कुछ कर दिया तो थैंक यू बोल दो तो मैं ग्रेटफुल इंसान बन जाऊंगी, नहीं. दैट इज नॉट व्हाट बीइंग एक्चुअली ग्रेटफुल इज अबाउट. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. आप अपनी लाइफ में देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप जितने आइडियाज लगा सकते थे कर लिए, जितनी वीडियोस देख सकते थे देख लिए, जितने मतलब एआईज यूज कर सकते थे कर लिए, जहां इन्वेस्ट कर सकते थे कर लिए, बट आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है मोर और लेस एक सिमिलर बैंडविथ में ही चल रहा है. एक कहते हैं ना जब वो प्रोफाउंड शिफ्ट आता है ना कि वाह भाई मजा आ गया, मतलब वो इज नॉट हैपनिंग. हाँ मैं काम कर रही हूँ, हाँ ऑफिस जा रही हूँ, हाँ क्लाइंट्स आ रहे हैं, कुछ से इतना प्रॉफिट मिल जाता है, कुछ से इतना प्रॉफिट मिल जाता है, कुछ भाग जाते हैं, कुछ ये हो जाता है. एंड इसी डोमेन में चल रही है लाइफ. एंड इतनी मेहनत कर रही हूँ, दिन से लेके शाम तक मेहनत कर रही हूँ, बट तब भी इट्स गोइंग ओके ओके. आप अपनी लाइफ में देखो, जैसे रोंडा अपनी कहानी शेयर कर रही है, आप अपनी लाइफ में देखो, फाइनेंशियल्स में देखो, अभी आप कहाँ खड़े हो. कंटिन्यूअस अंडर करंट ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? दिखने में तो जैसे बोलते नहीं है हाउ इज इट गोइंग, ऑल इज गुड एंड यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बट अंदर ही अंदर चल रहा होता है यार अगर इस क्लाइंट ने कुछ ऐसा कर दिया, या ये ऐसे हो गया, या यहाँ पे पैसे डूब गए तो क्या होगा यार, अभी बच्चों का ये आ रहा है, ये आ रहा है, अभी तो सब बढ़िया है बट कल क्या होगा यार. होता है ऐसे. दिखने में तो सब बढ़िया है और अंदर दिमाग में पता नहीं क्या 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 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की प्लानिंग भाग रही होती है. अगर इस स्टाफ ने ऐसा कर दिया, स्टाफ क्लाइंट्स लेके भाग गया, ये इसने ऐसे कर लिया, उसने वैसे कर लिया, कॉम्पिटिटर ने अगर रेट्स कम कर लिए तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं कैसे क्या करूंगा. एंड इट्स अंडर करंट ऑफ स्ट्रेस. दिखने में तो शाम में इट्स ऑल गुड एंड फाइन. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. आप देखो अपनी लाइफ में कभी कभार उस रिश्ते में बहुत प्यार आता है और कभी कभार तो ऐसे होता है कि यार मेरे से बात भी मत करो. एंड जब वो फेज आता है कि यार प्लीज मुझसे बात भी मत करो, तो फिर ऐसा लगता है यार बस देन ऐसे कभी हुआ है कि देन द रिलेशनशिप जस्ट बिकम्स अ वेरी सुपरफिशियल रिलेशनशिप. हाँ जी, हाँ जी बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू. एंड जैसे वो इंसान आपसे दूर होता है आपको लगता है हाँ थैंक गॉड चलो हो गया, दूर हो जाओ. हैव यू फेल्ट लाइक दिस? नाउ व्हाइल आई वाज व्हाट वुड बी टर्म्ड हेल्दी, I felt exhausted at the end of each day. And I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then, the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. है ना, दिखने में हेल्दी मतलब चल फिर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट यार इतनी थकावट रहती है. यार मौसम बदला नहीं, बीमारियां पहले आ जाती हैं. है ना, मतलब ये हो क्या रहा है? हाँ चलो वीकेंड आया, सैटरडे संडे मैंने चिल किया, सब कुछ किया. अब संडे संडे शाम आई नहीं कि अंदर से धक धक यार कल फिर से मंडे है यार, फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा. काइंड ऑफ लाइफ टेक्स ओवर. एंड इफ दैट इज हाउ लाइफ इज फॉर यू, तो कंसिडर कीजिए दैट देयर एग्जिस्ट्स अ न्यू लेवल अप वेटिंग फॉर यू. अभी हम रोंडा की कहानी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने जीवन को भी स्कैन कीजिए. I was not living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. ऐसे होता है आपके साथ
यार एक चीज अभी सॉल्व की थी, अभी तो बैठी थी, दूसरी चीज सामने आ गई। अभी तो इससे खत्म किया था, अभी फिर से इसकी आ गया। ये चल क्या रहा है यार, है ना। एंड यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज। फायर फाइटिंग वर्ड सुने। अभी यहाँ पे आग बुझाओ, यहाँ पे आग बुझाओ, यहाँ पे आग बुझाओ। बट देन, अगर आपकी लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है तो अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. जितना ज्यादा मैंने हर दिन, इट्स एन ईच डे प्रैक्टिस, ये नहीं कि मैंने एक दिन सुन लिया अब मैं बन गई, नहीं, हर दिन करना है। एंड इसकी वजह से एवरीथिंग इन माई लाइफ चेंज्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. आप में से किस किस के डेट्स हैं जो आप चाहते हो कि हाँ यार, मतलब मैं मजे कर रहा था हूँ, एकदम से वो डेट का ख्याल आता है और सारा वो जॉयफुलनेस, वो मजा ऐसे उड़ जाता है, भाग जाता है। अंदर से ना अंडर करंट उसी का स्ट्रेस चलता रहता है कि यार इसकी ईएमआई भरनी है, ईएमआई भरनी है, ईएमआई भरनी है। इफ रोंडा बर्न कैन डू इट, एंड अभी हम पढ़ेंगे कितना मोटा डेट था उनके ऊपर, तो आप भी अपनी प्रैक्टिस के साथ, शिद्दत के साथ, सरेंडरिंग के साथ, जो भी हम जर्नी में आए हैं, and a lot of fellow participants on this call have made this come true for them. So she became debt free, and then सरप्लस हो गया मनी का कि अरे अब इसके साथ जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. ये अच्छी चीज, वो अच्छी चीज, ये अच्छी चीज, वो अच्छी चीज भरी जा रही थी। My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. जिसे कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, जो बॉन्ड होता है वो अंदर से रूट लेवल से इतना स्ट्रांग हो गया, इतना पक्का हो गया कि मजे आने लग गए उस रिश्ते में। More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. सिर्फ एक चीज उन्होंने पकड़ी, वो एक चीज उन्होंने अपनी लाइफ में लाई, उससे उनका जीवन कंप्लीटली इट शिफ्टेड अराउंड। सो नाउ हमने इनकी जर्नी पढ़ी, अब हम सीखेंगे यार अपनी लाइफ में भी तो लेके आना है। यस, तो चलिए सीखते हैं ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। अपने जीवन में कैसे लाना है, उसके क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक है। जैसे वो रेसिपी बुक नहीं होती है, आपने अगर कभी कोई किचन में खाना बनाया है तो एक इंग्रेडिएंट बुक होती है ना, इसी प्रकार आप देखिए इस फोटो में उन्होंने एक इंग्रेडिएंट बुक बनाई है। एंड ये इंग्रेडिएंट बुक किस चीज के लिए है कि आप अपने जीवन में अगर इस जादू को का प्रवेश करवाना चाहते हैं, उसको वेलकम करना चाहते हैं, तो चलिए। नो मैटर, अभी तक सब क्लियर जो अभी तक हमने पढ़ा। यस, if you at any point you have any questions, you have anything that you want to ask, आप chat में लिख सकते हैं, we would be happy to answer that for you। ठीक है, so now let's learn। So no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आप, जैसे मैंने कल भी बोला है ना, फर्क नहीं पड़ता अभी आपकी मनी के एरिया में बैंड बजी हुई है कि आप ऑलरेडी यू हैव सरप्लस ऑफ मनी, आपकी हेल्थ की बैंड बजी हुई है या आपकी हेल्थ एकदम फिट फाइन है।
है ना, आपके बालों की, आपकी आंखों की, आपकी मेंटल हेल्थ की, आपकी एनर्जी लेवल्स की, आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट की, आपके अंदर के पैशन फाइंडिंग की, आपके अंदर के पर्पसफुलनेस की, आपके क्लाइंट्स की, आपके प्रॉफिटेबिलिटी की, आपकी, नो मैटर हु यू आर, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, इट डजेंट मैटर। ये कृतज्ञता का जादू आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया कि कोई लेडी तेलुगु में बुक मांग रही थी, सो दिस बुक इज देयर इन अदर लैंग्वेजेस। अगर आपकी मदर टंग कुछ और है तो आप अपने एंड पे गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको अपनी मदर टंग जिसमें भी आप बात करते हैं, आई एम श्योर यू विल फाइंड दिस बुक इन दैट लैंग्वेज एज वेल। उसको अपने आप से पढ़िए, अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ है। ठीक है। So I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. Completely मतलब कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि यार वो मैं थी, ये जिंदगी है। मतलब मैं अपनी लाइफ से बता रही हूँ, व्हेन आई लुक एट माई लाइफ राइट नाउ आई फील यार ये लाइफ तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी जो मैं अभी जी रही हूँ। मतलब यही सेम लाइफ अगर आप मुझे बोलते 1.5 साल पहले, एनी आप इमेजिन करो कि दिस इज हाउ वंडरफुल योर लाइफ कैन बी, आई बी लाइक हाँ। इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, मैं तो इनफैक्ट इमेजिन करती थी मेरे रिश्तेदारों को, अगर मैं बोलती थी ना अरे देखो मैरिड लाइफ ऐसी हो सकती है, अपनी करियर लाइफ ऐसी हो सकती है, घूमने फिरने की लाइफ, हेल्थ की लाइफ ऐसी हो सकती है, दे वुड से हाँ 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 तू अपने सपने देख, ऐसा असली जिंदगी में नहीं होता। बट होता है, सचमुच होता है। I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बता रही हूँ, मेरी मदर की हेल्थ में, मेरे फादर की हेल्थ में, मेरे नानू की हेल्थ में, मेरी खुद की हेल्थ में, जहां पे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बिना सर्जरी के कुछ नहीं हो सकता है, वंडर्स स्टार्टेड हैपनिंग। जहां डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए थे कि अरे नहीं नहीं नहीं, एंड दोस पीपल हील्ड। देखिए आप, सो इट्स अमेजिंग। I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. Many of people, participants have shared that they were on the verge of getting separated and they did the practices that they did, and now they are even getting back together with their partner. Yeah, who are living with their partners and they shared कि उनकी शादी को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स हो गए थे, एंड नाउ जो वो पहले पहले समय का प्यार होता है, दे वर एबल टू rekindle दैट यूजिंग द प्रैक्टिसेस दैट वी गोइंग टू डू। आई हैव सीन दोज इन टोटल पॉवर्टी बिकम प्रॉस्परस। I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. ठीक है, तो आप जहां भी खड़े हैं इज ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी अच्छी स्टेज पे हैं तो इट्स ऑलवेज गुड टू लेवल अप। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. तो अब मैं आपसे पूछूंगी, इसने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि आप अपने जीवन में किस किस क्षेत्र को और ज्यादा प्रॉस्परस बना सकते हैं, बट मेरा प्रश्न आपसे है कि आप कौन से क्षेत्र को बनाना चाहेंगे। When it says you can turn your life into gold, gold का मतलब क्या होता है? Gold means really making something very valuable, making something which is highly desired, जिसकी मार्केट वैल्यू हमेशा मोस्टली अप्रिशिएट होती रहती है ना। लोगों का सपना होता है यार मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, है ना, इतना ज्यादा हाईली डिमांडेड। तो इस प्रकार का जीवन आपका बन जाएगा। बट आप किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं? अपने बिजनेस में, वेरी गुड, मनी एंड बिजनेस ब्यूटीफुल।
In your studies, very good. In your health, money, very good. In your relationships, great. ग्रेट। हाँ, तो आप जिस भी क्षेत्र में बरकतें चाहते हैं, मैजिक्स चाहते हैं, इट इज गुड टू हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ क्लैरिटी फॉर योर सेल्फ इन दैट। ओके, सो करना क्या है अभी हम पढ़ते हैं। Now, as you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. अभी तक क्या होता है, अगर कोई चीज आपके जीवन में वैसी नहीं चल रही जैसे आपको लगता है होनी चाहिए, हम क्या करते हैं नॉर्मली, कोई आपकी सुन नहीं रहा है या कोई रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आपको लगता है आना चाहिए, या आपने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया जितना आपको लगता है करना चाहिए, अभी क्या करते हो आप? व्हाट यू डू वेरी ऑफन, वी ब्लेम। हाँ देखा, मेरे को पता ही था इसकी वजह से ऐसे होना, इसने करा ही नहीं था, है ना। वी गो ब्लेमिंग, वी गो कंप्लेनिंग, वी गो हेल्पलेसनेस कि यार भगवान तुम देख लो यार, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो सुनते ही नहीं हो, है ना। वी स्टार्ट वाइनिंग, हम बेचारे बन जाते हैं, है ना। बेचारे अब लेना, अरे मेरे तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वी डू ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हेन समथिंग डजंट गो आवर वे। बट इस प्रैक्टिस के थ्रू यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी ऑन, अच्छा अच्छा अच्छा, दिस थिंग डिडंट वर्क आउट बिकॉज दिस। तो अभी क्या है, जो मैं थिंग्स आउटसाइड ऑफ मी को ब्लेम कर रही हूँ, थिंग्स आउटसाइड ऑफ मी में मैं देख रही हूँ, अरे अच्छा इसकी वजह से उसकी वजह से, की बजाय आई विल आई विल बी इन कंट्रोल, आई विल बी इन पावर टू सी, ओ ओके दिस डिडंट हैपन बिकॉज मेरी लाइफ से ये मिसिंग था। ओके, so you will be able to get clarity on that, why certain things might be missing from your life. Now, as you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. आपको याद है last time जब आप excited थे to be alive? Like, do you remember the last time when you were like, oh wow, मजा आ गया? Like, आप सुबह उठते हो and you are like, oh wow, wow, wow. है ना, मतलब नॉर्मली जब एयरपोर्ट जाना होता है तो एक्साइटेड होते हो, बट बाकी सारे दिन अच्छा हाँ ठीक है सुबह हो गई, है ना। बट व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे विल बी फिल्ड विद एक्साइटमेंट, you will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. Effortless मतलब ये तो बड़ा आसानी से हो गया। और देखो, कमाल की बात है, यू नीड टू आइडेंटिफाई सिम्टम्स। अगर सब चीजें एफर्टलेसली हो रही है मतलब आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है। और अगर अभी आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है उस एक ही चीज में, मतलब अंदर से पूरा दम लगा रहे हो तब भी सिर्फ ना के बराबर शिफ्ट आ रहा है, मान लो ग्रेटिट्यूड मिसिंग है। सिंपल, है ना। दीज आर सम सिम्टम्स दैट द बुक इज टेलिंग यू, ताकि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना सीख पाओ। If things are going smoothly, must, okay, your gratitude practices is going well. If not, तो थोड़ा इस एरिया में काम कर लो, ठीक है। बाकी चीज मक्खन की तरह anyway it will happen. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. इसका मतलब क्या हुआ, ये मत बोलना मैम मैंने तो मैजिक बुक 10 बार करती पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही वो ऐसा क्यों करते हैं। नहीं, यू आर लिविंग अ ह्यूमन लाइफ, थिंग्स विल गो द वे थिंग्स विल गो, ऑल राइट। लाइफ इज गोइंग टू बी, लाइफ इज गोइंग टू बी, लाइफ विल हैव चैलेंजेस लाइक इट ऑलवेज हैज चैलेंजेस। डोंट गो अबाउट सेइंग अरे अब मेरे ऊपर शील्ड आ जानी चाहिए थी, मैंने मैजिक बुक कर ली, नहीं। इट सिंपली मीन्स नाउ यू नो हाउ टू डील विद इट। सिंपल, इट्स लाइक आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो एंड नाउ यू नो कि ओके अगर कोई सामने से आ रहा है या यू नो सम स्टूपिड पर्सन इज ड्राइविंग अराउंड मी, मेरे को इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगानी है मुझे आनी चाहिए। सिंपल, है ना। मेरे को सीट बेल्ट कैसे पहननी है मुझे आनी चाहिए। अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो यू नो आई नीड टू नो हाउ टू पुल द हैंड ब्रेक और डू वट एवर आई नीड टू डू, या मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को रेयर व्यू मिरर्स पे देख के यहाँ पे चलाना है या हाईवे पे गाड़ी चलानी है। काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग यू फॉर व्हाट लाइफ इज।
ठीक है, सो ये मैं इसलिए आई हैड टू एम्फसाइज ऑन दिस बिकॉज फ्यू पीपल से मैम मैंने तो 10 बार मैजिक बुक कर ली तब भी डॉट डॉट डॉट। लाइफ विल बी द वे लाइफ विल बी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में ही बता रहे हैं। सो एवरी डे, सो यू विल नो हाउ टू ओवरकम देम एंड लर्न फ्रॉम देम। हाँ, अभी जो हम बेचारे बन के बैठ जाते हैं, बेचारे बनने की बजाय ना यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। एवरी डे विल बी मैजिकल, every day will be filled with far more magic than when you were a child, and I assure you it's true. ठीक है, so now आपको पता है आप कहीं पहुंचना चाहते हो, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सपना है कि यार मेरे को ना A+ मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट में, मैथ्स में A+ चाहिए। ओके, सपना बना लिया आपने कि मुझे मैथ्स में A+ चाहिए, गुड फॉर यू। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि भाई रिपोर्ट कार्ड देख लो अपनी, कि अभी कहाँ खड़े हो, है ना? अगर मैं अपनी फिलहाल की रिपोर्ट कार्ड ही ना देखूं और सिर्फ सपने देखती रहूं, डू यू थिंक आई कैन प्रैक्टिकली इंप्रूव ऑन इट? नो, राइट? आई हैव गॉट टू नो वेयर एम आई करंटली स्टैंडिंग। एंड नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सेक्शन, which is आप अपनी आप अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाले हैं इन वट एवर एरिया ऑफ लाइफ दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो उसे ओपन कर लो। एवरीबडी ओपन योर नोटबुक, ओपन अ फ्रेश पेज, लेट मी नो वंस यूर रेडी। ओपन अ नोटबुक, ओपन अ फ्रेश पेज, let me know when you're ready. Okay, there are 469 people on the call. I want 469 yeses so I can begin with this section. बनाओ 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 बनाओ, जल्दी से यस लिख दो, ठीक है? ऑल राइट, आई थिंक मेजोरिटी पीपल हैव रेडी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, चलिए अब हम अपनी जीवन में अपने प्रेजेंट मैजिक्स की रिपोर्ट कार्ड तैयार करें बाय आस्किंग, इज माई लाइफ मैजिकल? है ना? अगर मैं अपना अभी फिलहाल का आईना ही नहीं फेस करूंगी और मैं बोलती रहूंगी हाँ हाँ अभी सब बढ़िया ही तो चल रहा है, सब बढ़िया ही तो चल रहा है, तो फिर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर मेरे को ही नहीं लगता कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो फिर बेचारा मैजिक क्या ही कर पाएगा। ठीक है, तो पहले आई नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। तो चलो पढ़ते हैं क्या करना है। नाउ यू कैन टेल राइट नाउ हाउ मच यू हैव एक्चुअली यूज ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। है ना, कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी। So just take a look at all of the major areas in your life. Okay, now everyone अपनी कॉपी में हेडिंग लिखो मनी। अगर आपको लगता है आपके पास उतना पैसा है जितना होना चाहिए, मैं अभी दुनिया की बात नहीं कर रही, मैं किसी उस चीज की बात नहीं कर रही, अपने हिसाब से लिखो, आपके हिसाब से जितना पैसा होना चाहिए अगर आपके पास है, राइट, टिक कर दो, टिक। और अगर लगता है नहीं है, क्रॉस कर दो, बस। ठीक है, आप चाहो तो आप मनी को डिफरेंट सेक्शंस में ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक नेसेसिटीज वाला मनी होता है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल वाला मनी होता है। और भी अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लिए मनी चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए मनी होता है, सेविंग्स के लिए मनी होता है। तो इफ यू वांट टू ब्रेक डाउन द सब्जेक्ट ऑफ मनी इनटू डिफरेंट डिफरेंट सब हेडिंग्स यू कैन, वो आपके ऊपर है। एंड देन उसके सामने अभी फिलहाल सिर्फ टिक कर दो या क्रॉस कर दो। अगर उतना है जितना आपको चाहिए तो टिक कर दो, अगर उतना नहीं है तो क्रॉस कर दो। कुछ को होता है कि मेरे को अपना सेल्फ अर्न्ड मनी चाहिए, वट एवर इट इज, आपका पास है तो टिक कर दो, नहीं है तो क्रॉस कर दो, डन। और देखो, और किस किस, चलो बताओ, एवरीवन टेल मी व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ मनी डू यू थिंक यू नीड? चलो टेल मी हेडिंग्स, लेट्स डू इट अच्छे से ना, ताकि वी हैव अ मोर ब्रॉडर सेंस ऑफ क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी व्हाट ऑल, किस किस चीज के लिए आपको पैसा मोटा मोटा चाहिए होता है? हाँ लिख लो, इन्वेस्टमेंट लिख लो, आपकी शादी, आपके घर में किसी बच्चों की शादी, पढ़ाइयों की शादी, हाँ, ईएमआईज के लिए पैसे, गुड, प्रॉपर्टी के पैसे, डोनेशंस के लिए पैसे। ये मैं कैटेगरीज लिख रही हूँ, आप लिखते रहो अपनी कॉपी में। इन्वेस्टमेंट्स, घर, ड्रीम लाइफ, ज्वेलरी, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, हाउस, बेटे की शादी। ठीक है, सब लोग लिख लो, लिख लिया कॉपी में?
इफ यू हैव इनफ मनी टिक कर दो, नहीं है तो क्रॉस कर दो, सिंपल। जब कर लो तो मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम मोटा मोटा ओवरव्यू कर रहे हैं, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मोटा मोटा। राइट, इफ यू डन द टिक एंड क्रॉस वाला वर्क लेट मी नो। हाँ, घर की रेनोवेशन के लिए पैसे चाहिए, गुड, अच्छी बात है। Now sometimes you may have the money but you don't have the feeling of being rich. You have the money in your bank but you don't have a rich experience about yourself. Like आप खर्चते नहीं हो अपने ऊपर। तो if you want a wealth mindset, वो भी लिख दो। लिख दो फिलहाल, क्या होगा कैसे होगा we'll figure it out, तो लिख लो। Next, health. Write down the area of health. ठीक है। हेल्थ में अब आप चाहो तो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो फिजिकल हेल्थ लिख सकते हो। अब जैसे कुछ हो सकते हैं उनके आंख में ब्रेक डाउन है, किसी के घुटने में ब्रेक डाउन है, किसी के बाल में ब्रेक डाउन है, तो टिक क्रॉस करना है, सिंपल। ठीक है। इफ यू थिंक इट्स द वे यू वांट इट टू बी टिक कर दो, इफ इट्स नॉट द वे यू वांट इट टू बी क्रॉस कर दो। ठीक है। अपनी आईज को देखो, हेयर को देखो, नीज को देखो, और कोई चीज मतलब यू वुड नो अबाउट योर हेल्थ, राइट इट डाउन। डाइट, अपना डाइजेशन सिस्टम देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस ठीक से ले पाते हो, छोड़ पाते हो, रात में स्नोरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, आपका ईएनटी सब बढ़िया चल रहा है। सो रियली लुक फॉर इट। इफ यू डोंट लुक, you can't work on it. If you say all is perfect, then there is zero scope of improvement. ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जानबूझ के गलतियां ढूंढो, आई एम जस्ट आस्किंग अकॉर्डिंग टू यू। नाउ सम पर्सन में से यार तुझे वेट लूज करना चाहिए, वेट लूज करना चाहिए, आपके हिसाब से आप बोलो यार मैं तो मस्त हूं, तो फिर वो टिक में ही जाएगा। दूसरों की नहीं सुननी, अपने नजरिए में देखो कि क्या आपके सेहत के क्षेत्र में आपका दिल हो सकता है। आपकी मेंटल हेल्थ में देखो, ज्यादा स्ट्रेस टेंशन में तो नहीं रहते, घबराए हुए तो नहीं रहते। तो राइट डाउन, इफ इट्स अ टिक, बढ़िया चल रहा है, मेंटल हेल्थ बढ़िया चल रही है, टिक कर दो, नहीं चल रही तो क्रॉस कर दो। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपका वो सब कुछ, अभी मोटा मोटा काम कर रहे हैं। ठीक है। लिख लिया। हाँ, नींद अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो टिक, नहीं आ रही तो क्रॉस। सुबह उठ रहे हो तो एनर्जी लेवल्स है कि थके थके रह रहे हो, एनर्जी लेवल्स है तो ठीक, नहीं है तो क्रॉस। अभी अभी हम मोटा मोटा काम कर रहे हैं, अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अभी मैं सिर्फ लिटरली टिक एंड क्रॉस करवा रही हूँ। प्लीज अभी इस पे आप फोकस मत कीजिएगा, अभी हमने मैजिक बुक स्टार्ट नहीं करी है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं। मैं सिर्फ आपकी उस पे निकाल रही हूँ ताकि आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड मिल जाए, दैट्स ऑल वी आर डूइंग। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, हैप्पीनेस। एवरीवन गो टू हैप्पीनेस। मोटा मोटा अपने आप को देख लो, टिक है कि क्रॉस है। उतने खुश रहते हो जितना रहना चाहते हो, या कभी कभी उतनी नहीं होती जितना मुझे लगता है मैं हो सकती हूँ, उतनी नहीं हो पा रही। जो भी आपका है, यस या नो लिख दो। करियर में देख लो, टिक क्रॉस, सिंपल, इतने वो नहीं, टिक क्रॉस सिंपल। इज इट गोइंग, इज योर करियर ग्रोइंग द वे यू वांट इट टू बी, या यू थिंक नहीं यार थोड़ा और हो सकता है, टिक क्रॉस। आपका घर बिल्कुल वैसा है जैसा आप चाहते हो, या आपको लगता है यार कुछ तो बदलाव होना चाहिए। सी, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स आर दे गोइंग द वे यू वांट देम टू बी, या आपको लगता है नहीं यार बेटर होने चाहिए, आपके हिसाब से। बाकियों को भूल जाओ, आपके हिसाब से। है ना, अपने हस्बैंड के साथ देखो, अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके हिसाब से बढ़िया चल रहे हैं तो टिक कर दो। दूसरों से नहीं पूछ रही हूँ, अपने बिजनेस एम्प्लॉयज के साथ आपके रिलेशनशिप बढ़िया चल रहे हैं, स्टाफ के साथ बढ़िया चल रहे हैं,
क्लाइंट्स के साथ बढ़िया चल रहे हैं, आपके हाउस हेल्प के साथ बढ़िया चल रहे हैं तो ओके कर दो, वरना क्रॉस कर दो। आपके टीचर्स, राइट डाउन। ओके, नाउ व्हाट आई विल आस्क यू टू डू इज, कितने टिक्स हैं और कितने क्रॉसेस हैं मुझे बता दो, बस गिन के, सिंपल। टिक्स को प्लस कर दो और क्रॉसेस को प्लस कर दो, और मुझे चैट में बताओ कितनी चीजें आपकी एकदम टिक में चल रही हैं और कितनी क्रॉस में चल रही है। एक दो तीन चार, छह, सात। बता दो। हाँ मतलब, हाँ बताओ। हाँ, 9 क्रॉस, 15 टिक, 2 क्रॉस, वेरी गुड। 5 यस, 4 नो, वेरी गुड। 3 क्रॉस, 5 क्रॉस, 1 टिक, ऑल क्रॉस। 5 टिक, 13 क्रॉस, 5 क्रॉस, 1 टिक, वेरी गुड। सी यू आर द जज। एंड कमाल की बात है, देखो, दिस बुक इज ओनली यू कैन बी द जज। इज योर लाइफ मैजिकल? ओनली आई कैन नेवर टेल यू वेदर आपके रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? आपको पता होगा। ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर डूइंग दिस प्रैक्टिस। थैंक यू एवरीवन फॉर डूइंग दिस प्रैक्टिस। अब आपको कम से कम किस किस को, चलो इतना आपने प्रैक्टिस करी, एंड नाउ यू हैव सर्टेन सेंस ऑफ क्लैरिटी कि अच्छा अब मेरे को अपना फोकस ना इन पे ज्यादा करना है ना। एंड द, अच्छा, अच्छा अभी यहां तक आपने पढ़ा। नाउ द एरियाज ऑफ योर लाइफ दैट आर अबंडेंट, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing magic as a result. बताओ मुझे, आप में से जिस जिस ने जिस जिस भी एरिया में टिक किया, टेल मी, वहां पे जाने में या अनजाने में, हैव यू बीन ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग? क्या आपको दिल से वो चीज पसंद है? जिन जिन पे भी आपका टिक आया है, जिस भी चीज पे आपने टिक किया है, जिस वजह से उसमें कमाल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, यस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार वो एरिया इसीलिए वंडरफुल है क्योंकि मैंने जाने में अनजाने में आई हैव बिन ग्रेटफुल इन दैट एरिया, एंड एज अ रिजल्ट मैजिक मेरी लाइफ में आया। एनी एरियाज दैट आर नॉट abundant एंड वंडरफुल आर ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप देख सकते हो जिन जिन एरियाज में आपने क्रॉस करे हैं, वहां पे मैंने उस चीज को या तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, या मैंने उसको, यू नो, देयर इज अ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड इन दैट एरिया। कैन यू सी? यस। सो टुडेज चैप्टर वी गोइंग टू स्टॉप हियर, एंड आज की आपकी जो असाइनमेंट है दैट वी आर गोइंग टू डू इज, थ्रू आउट द डे यू हैव टू लुक फॉर ऑल दीज टिक्स एंड ऑल दीज क्रॉसेस इन योर लाइफ। मतलब कौन कौन से लाइफ में मेरे एरियाज अबंडेंट चल रहे हैं, एंड कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे जाने अनजाने में abundance is missing, magics are missing। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा, your brain will start opening up, it will start becoming more aware। है ना? आपकी रिपोर्ट कार्ड, अभी तो आपने मोटी मोटी रिपोर्ट कार्ड बनाई है, अब इसमें आप थोड़े थोड़े सब हेड्स भी ऐड कर सकते हो ना दिन के दौरान। तो आपके दिमाग में कुछ भी टॉपिक आए, है ना, आपके मुंह से अगर थोड़ी सी भी कुछ कंप्लेन निकलने वाली है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया यार आपको ना आज लंच आपकी पसंद का नहीं मिला है, या आपकी हाउस हेल्प आपकी उस प्रकार बात नहीं सुन रही है जिस प्रकार आप चाहते हो, तो क्या समझ में आ गया, अच्छा इस एरिया में ना मैजिक मिसिंग है। चलो भाई अपनी नोटबुक खोलती हूँ और लिख देती हूँ, ओके, लंच सेंड टू ऑफिस, क्रॉस। एटलीस्ट नाउ आई हैव सम क्लैरिटी क्योंकि दिस इज एन एरिया आई कैन चूज टू वर्क ऑन यूजिंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो मैं सीखूंगी। ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट। अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर्स ही चल रहे हैं, बट every single day is an opportunity to grow my nazariya, to allow myself to experience more and more magics. So thank you everyone for being a part of today's session. Thank you for being a part of today's practice. It is 1 o'clock, so officially the chapter is completed.
एंड वी विल नाउ, इफ देर आर एनी क्वेश्चंस वी विल टेक देम। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है, शेयरिंग्स नहीं है, तो आप सेशन से लॉग ऑफ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यस, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आई विल इनवाइट यू टू अनम्यूट, ठीक है। किसी ने मैसेज किया, आप पर्सनल क्वेरी कैसे कर सकते हैं? आप पर्सनल क्वेरी नहीं कर सकते हैं। मैजिक बुक इज अ ग्रुप सेशन एंड ऑल दिस दैट इज हैपनिंग इज वॉलेंटरी इन नेचर। आपका जो भी प्रश्न है आप इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जूम क्लास में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपका जो प्रश्न होगा वो किसी और का भी प्रश्न होगा। तो वी वॉन्ट एवरी वन टू बेनिफिट फ्रॉम योर क्वेश्चन। तो आपके जो भी प्रश्न है आप सिर्फ इसी जूम क्लास में पूछ पाएंगे, और किसी के लिए और इस सेशन के बाद वुड नॉट बी पॉसिबल। थैंक यू। यस, सो प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑफिशियली द सेशन इज कंप्लीट। यस मधु जी, अनम्यूट करें। ये सैनी, हाँ जी। अभी आपने सेशन में बोला ना कि मतलब अगर डेब्ट है, जैसे अपनी बात है कि फैमिली पर डेब्ट बहुत समय से है और वो प्रोफाउंड शिफ्ट नहीं आया, राइट? तो प्रैक्टिस करते करते भी अब वही होता है कि मुझे अपना ही ढूंढना है कि बाकी और चीजें भी डेट साथ में आपका होती है हैं कि शायद। किसी और का है? मेरा मतलब मेरी फैमिली। आपका है कि किसी और का है? आपके नाम पे है कि किसी और के नाम पे है? नहीं, मैं मेरे पर्सनल तो नहीं है। तो मेरे बच्चे हो गए या मेरे हस्बैंड है तो पार्ट ऑफ फैमिली है। तो तो मेरी उसमें ना कल एक हम्म तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इट्स नाइस, देखो मनी एज अ फंडामेंटल एक पर्सनल फिनोमिनन होता है, जैसे अभी हम आगे चलते चलते चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मनी एज एन एनर्जी आपने पहले भी मैजिक बुक करी है। मेरा नजरिया हम्म अबाउट मनी एंड मेरे भाई का नजरिया अबाउट मनी एंड मेरी मम्मी का नजरिया अबाउट मनी मे बी वेरी डिफरेंट, है ना? तो इफ हम्म फॉर एग्जाम्पल माई मम्मी इज ग्रेटफुल फॉर मनी, बट मे बी माई ब्रदर और माई XYZ स्टाफ इज नॉट, बट वो, मेरे कहने का मतलब यह है कि इट्स गुड, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स गुड अगर हम्म वो व्यक्ति जिसके नाम पे वो लोन है वो भी अपना रिलेशनशिप विद मनी के ऊपर काम करे। ट्रू ट्रू, या दिस इज मिसिंग। यस, आप एंड प्रैक्टिस करके ना देखो, आप सिर्फ ब्लेसिंग दे सकते हो, बट जिस व्यक्ति के नाम पे वो लोन है, अगर वो इस क्लास में नहीं आएगा तो मैं कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊँ। ओके, बेटर बेटर। ठीक अच्छा, है। एक और था, कल मैंने वो सीक्रेट मूवी देखी थी, तो उसमें भी मैंने यही अंडरलाइन किया था कि बहुत से लोग कर्ज से छुटकारा पाने चाहते हैं, पर वो हमेशा आपको कर्ज में रखेगा। आप तो सोच रहे हैं कि ये कर्ज मुक्ति है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कर्ज अदायगी का स्थायी बंदोबस्त करें और अपनी सुख समृद्धि के बारे में सोचें। यस। तो यस। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ, बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग द मूवी। तो इस मूवी के अंदर जो ये लाइन आई है, मेरी इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि जो भी शब्द आप बोलते हैं आपके दिमाग में वो ही वो उसकी छवि बनाता है। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि एक पिंक कलर के हाथी के बारे में मत सोचो, प्लीज एक पिंक कलर के हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो पिंक कलर का हाथी के बारे में कभी मत सोचो। तो आपके दिमाग में किस चीज की छवि आई? वही पिंक कलर क्या, ठीक। एक पिंक कलर के राइट। हाथी की, राइट? तो सिमिलरली जब आप जिस चीज के बारे में बात करते हैं वो चीज आपके दिमाग में, आपके थॉट्स में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो जब मैं बोलती हूँ कर्ज ना आए, कर्ज ना आए, कर्ज ना आए, तो मेरा फोकस किस शब्द पे जा रहा है? उस शब्द पे जा रहा है। ठीक है? तो इसके अंदर उसने क्या बोला है कि आप कुछ भी एक ऐसा सिस्टम बना दो कि वो पेमेंट जो है वो ऑटो पे होती रहे, है ना? ऑटो पे होती रहे हम्म या कोई और व्यक्ति पे आउट करे, ताकि आपका ध्यान उस चीज के ऊपर से हट जाए। एंड अब आप अपने जीवन में मनी अबंडेंस, बरकतों के ऊपर फोकस कर सको, अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, कि अच्छा ठीक है वो ₹1,00,000 मुझे देना है या 2,000 या जो भी आपका EMI बनता है, आप बांध लिया, वो ऑटो पे होते जा। जैसे मैंने क्या किया, मेरे को मेरा EMI नहीं था, बट फॉर मी पेइंग बिल्स, लाइक इवन मोबाइल के फोन बिल्स पे करना एक बहुत ही
मतलब छोटा सा अमाउंट होता है, बट हर बार जाके पे करूं, हर बार जाके पे करूं, वो मेरे लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता था। मुझे लगता था अभी तो पे किया हम्म। था, देखो दोबारा आ गया। तो वो हर बार जब मैं पे करती थी मेरे लिए वो एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट करता था। तो फिर मैंने क्या किया, उसने बोला कि नहीं, आपको क्या करना है, उसको आप जो भी सिस्टम बनाना है बनाओ, ताकि आप अपनी फोकस मनी के ऊपर जितना पॉजिटिव दे पाओ दो। तो मैंने फिर अब मेरे सिस्टम में तो वो ऑटो पे का ऑप्शन आ गया था, तो मैंने उसको इनेबल कर दिया कि ठीक है, मुझे पता है इतना अमाउंट तक जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह वगैरह वो उससे पे होता जाएगा। अब मैं अपने बैंक बैलेंस पे फोकस करूंगी कि अच्छा मेरा बैंक बैलेंस इतना हो गया, मैं उसको ग्रेटिट्यूड एनर्जी सब भर भर के दूं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस लाइन पे ये बैठी। ठीक। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। आपकी असाइनमेंट आज की है, अपने जीवन में आपके जिस जिस क्षेत्र में मैजिक्स आ रहे हैं उसको टिक लिखते रहो, जिस जिस में नहीं है उसको क्रॉस करते रहो, बस अपनी लिस्ट बनाते रहो, ताकि आपको पता चलता रहे एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 26 नवंबर 1 PM मेरी लाइफ में कितने मैजिक हैं और कितने नहीं। ठीक है। All right, there's a question in the chat box. Let me read it. If we have paid gratitude towards a dream, visualized it, seeing that it won't be coming true, should we find a new dream on giving gratitude toward the same dream? क्यों, क्या हुआ? लड़का था क्या जिसको मम्मी ने मना कर दिया? तो कोई बात नहीं, उस लड़के से अगर 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 शादी रिलेटेड था तो कोई बात नहीं, उस लड़के से शादी नहीं होगी, वैसे तो हो ही जाएगी। अगर कुछ और ड्रीम था तो थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। हाँ, एंड आई कैन अश्योर यू, अगर लड़का था ना, आप 100% मैनिफेस्ट करते रहो। अच्छा, कॉलेज था तो भी यही सेम प्रैक्टिस करो। सेम, सी व्हाट अभी हम, आई थिंक कल होपफुली वी विल रीच द सेक्शन ऑफ व्हाट इज योर ड्रीम, जिसमें हम आपकी ड्रीम राइटिंग के ऊपर काम करेंगे। कि हमें लगता है कि उसी एक कॉलेज पे मेरा वो ड्रीम है, बट when you write down more details of what you expect from that college, what kind of career you want to achieve from that college, that might open up a whole new level of options for you. So वो अभी हमारा सेक्शन आएगा, we'll cover that later. Okay. यस, जिन जिन के हैंड्स रेज्ड है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रही कि अगर आप चैट में लिख सकें, क्योंकि अगर मैं एक एक करके सबका हैंड रेज लूंगी ना, तो उसी में नॉर्मली 1 घंटा और लग जाता है। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट अगर आप चैट में भी लिख पाए। थैंक यू। समीरा जी, अगर आज की असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जस्ट डू द प्रैक्टिस। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मैम, मुझको ये पूछना है कि ग्रेटिट्यूड कैसे करें, और मॉर्निंग में जैसे बोले कि मॉर्निंग में करना है, तो वो कैसे करना है वो पूछना था। अभी तो आपने सिखाया ही नहीं, अभी तक बुक ने सिखाया आपको ग्रेटिट्यूड करना? नहीं नहीं। सिखाया। बस चैप्टर, अभी जितना सिखाया है सिर्फ उतने पे आप फोकस करो, जब हम उस पे पहुंचेंगे तब हम सीखेंगे। ओके। जैसे कल के असाइनमेंट में लिखा था ना फर्स्ट की आप पापा मम्मी के लिए करना था, उसके अंदर कोई फॉर्मेट नहीं है। आप नॉर्मल थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी प्रकार भी अभी फिलहाल लिख लो। अभी आपको हमने तरीका सिखाया ही ओके ओके, सेकेंड वाला असाइनमेंट था ये। पर फर्स्ट वाला था कि मॉर्निंग में उठना था, वो कुछ असाइनमेंट था ना, वो वाला पूछ रही हूँ। नहीं। अभी आप पहले चैप्टर 1 आने दो, ताकि आपको पता तो चले सुबह उठ के करना क्या है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, पूनम बेरी जी, अनम्यूट करें प्लीज। पूनम हाँ बेरी जी जी, मैम। आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, आपका फर्स्ट टाइम है तो आप फिलहाल अभी की प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा अभी मैं, ओके ठीक है। अभी ओके सेशन चल रहा है सीक्रेट मूवी, आप आपका बेटा साथ में देखें, एंड अभी फिलहाल इसी फ्लो के साथ चलते हैं। आपका बेटा भी ओके हमारे सेशन में ज्वाइन कर सकता है तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू सो थैंक मच। यस, दिव्या जी का क्वेश्चन है, नेगेटिविटी को कैसे अपने में से रिमूव करना है। अभी हम कवर करेंगे, फिलहाल आज की असाइनमेंट करो। अभी एंगर हो जाता है ना, तो एंगर के सामने क्रॉस लिख दो। फिलहाल की असाइनमेंट सिर्फ इतनी है, वी विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप। है ना, अगर मैं नर्सरी के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूंगी तो वो डर के कल नहीं आएंगे क्लास में, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी। नर्सरी के बच्चे मतलब इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में हम इंट्रोडक्टरी लेवल के क्वेश्चंस, आगे चलते चलते आपका जब वीक 3 वीक 4 आएगा,
तो आपके ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, ठीक है? तो वी विल गो विद द फ्लो ऑफ द सेशन। ऑल राइट, हाँ ठीक है, आपका बेटा ऐसा है वैसा है, ठीक है, इट्स ओके, जस्ट डू टुडेज असाइनमेंट, लिख दो मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, क्रॉस। आज की असाइनमेंट आप उस पर अप्लाई करो। अभी मैं, अच्छा, जिन जिन को लग रहा है कि मैं आपको आज की असाइनमेंट के अलावा कुछ आंसर देने वाली हूं, मैं नहीं देने वाली हूँ। दिस इज अ न्यू सेशन, वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट न्यूली। क्वेश्चन से, सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ड्रीम्स के ऊपर अभी हमने काम नहीं किया है, ड्रीम्स के ऊपर हम अभी विद इन, आई थिंक मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर, वील वर्क ऑन इट। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। यस, शेयरिंग कर सकते हैं, यस, इफ यू हैव एनी शेयरिंग्स यू कैन शेयर। पलक जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वेट, आप अनम्यूट कर पाएंगे? पलक जी अनम्यूट करें प्लीज। शेयर योर नेम, Yes, आप किस सिटी से हैं, किस एरिया में आपने मैजिक किया? yes, ma'am. So my name is Palak and I am from New Delhi. So this is my sharing. Like I've been doing, joined this book since a month or two. So like I am joined with Vaiguruji basically. So I feel very blessed and more connected. And we have started doing thanks, and we have learned more and more ways how to give thanks to every little thing. Like even we are working in the kitchen, and so maybe this thing, and it is connecting me more to God. And the miracle has happened. Miracle कह लो, कुछ भी कह लो. The thing is कि I have started going to Amritsar more often, like 1 month में या मतलब once in 2 months ऐसे करके I have started going. And ऐसा हुआ है कि it's everybody knows it's very difficult to get darshan over there. 4 hours की line है. And you won't believe कि I don't get line. I have got some source कह लो, मतलब I don't know how. And I just get into it, and within 10-15 minutes, it hardly takes 10-15 minutes to me, and I get the darshan. Good, very good. So yes. So I feel more connected. But the thing is ki I am been working for more for my dream, like for my new house and all. So that I'm not able to achieve as of now. So maybe what do you suggest? Ki I need more gratitude in that area. And Just do this magic book practice freshly, ठीक है? okay. ठीक है. Thank you so much. Assignments that are being done, and जो जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनके लिए भी थैंक यू, ठीक है? Yes. Very Thank good, you. thank Thank you. Yes, so thank you everyone for joining in today's session. Thank you for being a part of today's practice. And मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है, मैजिक बुक केवल सिर्फ अपने ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है? प्लीज इस प्रैक्टिस को ऐसे करें जैसे मैं फर्स्ट टाइम कुछ भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। डजेंट मैटर आप कौन हैं, आपका पास्ट क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी क्या नेचर है, डजेंट मैटर। असाइनमेंट्स करो, है ना? और ज्यादा मन कर रहा है तो असाइनमेंट्स 2 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, असाइनमेंट्स करो, ठीक है? सो आज की So आपकी any असाइनमेंट आपको पता है, अपनी लिस्ट बनाए, तो प्लीज वर्क ऑन दैट एंड स्लोली स्टेडली बस जुड़े रहे, प्रैक्टिस करते रहे। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस, ठीक है? पेशेंटली डू एवरीथिंग। So thank you everyone. See you all tomorrow. Have a wonderful day ahead. Thank you so much. Thank you everyone. See you. Thank you. Thank you so much. Thank you. thank you. Thank you.